Hi, hello everyone. Welcome to today's session of Certified Ethical Hacking by One Byte Labs. I hope you are able to hear me and able to see the screen. So today uh, I will be retaking yesterday's session that was on footprinting and reconnaissance. Okay. So yesterday, because of some issues like around 20 to 30 minutes of screen wasn't recorded, and because of that, recorded video was not uh, okay to upload. So we are retaking this session. Okay, so let's start. So yesterday we discussed on footprinting and reconnaissance. So let's restart the particular session. Now let me share whiteboard. So as you know that we will be discussing about 5 phases. First was information gathering, scanning, reconnaissance, gaining access, maintaining access, covering tracks. Okay, so from this particular thing, first is completed. Okay, and right now we are discussing on this particular part, scanning. Okay, footprinting, reconnaissance, and scanning. Okay, so let's start. So in the last class, not yesterday, like day before yesterday, we discussed that how to find out information about your target, like basic informations and all. So we discussed about few websites like buildwith.com. We discussed about DNS checker .org. We discussed about one more tool. Just a minute. We forgot to cover up the Whois lookup tool, which is used to get information about a domain name. So these few things we discussed in the previous session, that how to gather information about a target. Okay. So apart from this, few more information you need to gather, that is getting information about subdomains, getting information about IP address, getting information about name servers, where it is hosted. So all these informations we need to gather of a particular target. Okay, so today we'll be seeing few more tools, few more practicals on which we can gather information, and we'll be starting with a very popular framework known as OSINT framework. ठीक है, तो OSINT फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो OSINT का फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग। ओके, सो OSINT एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपको एक डायरेक्टरी कैटेगराइज वे में आपको शो करता है फॉर द इंफॉर्मेशन यू नीड। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के हेल्प से गैदर कर सकते हैं। यू कैन सी यू आर हैविंग ऑप्शंस, यूजर नेम्स, email addresses, domain names, IP addresses, image, videos, docs, social networks, instant messaging, people search engine, datings, telephone numbers, public records, business records, transportations, geolocations, search engines, forum, archives, language translations, metadata, mobile emulation, and so on. Okay, so whatever information you need, you can just
click on that particular category. Let me show you one example मैं शो कर देता हूँ, जैसे कि डार्क वेब. अब डार्क वेब क्या है, कितने लोग को पता है यहाँ पे कि व्हाट इज डार्क वेब एंड डार्क नेट? एनीवन? एनी स्मॉल आइडिया लाइक व्हाट इज डार्क नेट एंड डार्क वेब? बस एक ओवरव्यू. Okay, so most of you know about dark web and dark net. So you know, like, no, you cannot say illegal work happens on dark web. No, it's not a true definition of dark web. ठीक है? डार्क वेब, डार्क नेट और डीप वेब ये एक ऐसा जगह है जो कि नॉर्मल इंटरनेट से अलग होता है. ओके, लाइक देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरनेट. फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इंटरनेट. नाउ यू नो इंटरनेट मींस लाइक कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, करेक्ट? अब इस इंटरनेट में भी अलग अलग लेयर्स होते हैं. पहला लेयर वो लेयर है जो कि सबसे ज्यादा विजिबल रहता है, एनीवन कैन एक्सेस दैट. ठीक है? फिर है डार्क वेब, ठीक है, जो कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, पर्टिकुलर मीडियम चाहिए एक्सेस करने के लिए. देन देयर इज अ डीप वेब. ठीक है? डीप वेब मींस लाइक all the informations hidden somewhere which is very very hard to find out. Okay, so lots of activities which people want to be private. ठीक है? जिसको लोग चाहते हैं कि वो प्राइवेट रहे. ओके, उसको वो लोग डार्क वेब और डार्क नेट या तो डीप वेब पे करते हैं. ओके, एंड यस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन इलीगली देयर. बहुत सी चीजें जो होती हैं वो इलीगली वहां पे होती हैं. जैसे कि if I click on Tor directories, what is Tor? Tor stands for the onion root. The onion root. This is a kind of protocol which is used to browse dark web. ठीक है? तो अगर मैं क्लिक करूं हिडन विकी पे, so I will be getting list of websites जो कि डार्क वेब पे हैं. ठीक है? और इसको आप एक्सेस एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हो, जो कि है टॉर ब्राउजर या तो टॉर के वीपीएन्स. ठीक है? तो टॉर जो है वो ब्राउजर हो गया जिसके हेल्प से यू कैन एक्सेस दिस. So without the help of the softwares, you cannot access the dark web content. Okay, so you can see hidden wiki. This is a kind of website where you can see list of dark web websites. जैसे कि ड्रग स्टोर्स. अब डिफरेंट अब ड्रग्स जो है वो ऑब्वियसली इलीगल है. LSDs, okay, weed, all these things are not available on the internet, the first surface, but it is available on the dark web. अब इसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये ओपन थोड़ी होगा. Why? Because this is something which I can only access with the help of Tor browser. This is the Tor project. This is the Tor browser. ठीक है? Now you can just download this Tor browser, and then if you try to enter this particular address in the Tor browser, you can access the particular content. I'm disabling the chat as of now. People are just typing in the live chat as a distraction. So I'm disabling the live chat. I will allow once I will be asking for Q&As. Okay, so yeah, this is a Tor browser which you can use to access these particular links. Okay, obviously if you are browsing the particular website, then it's okay. अगर आप सिर्फ ब्राउज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन देख रहे हो, तो ओके है. अगर आपने कुछ परचेज करने का कोशिश किया डार्क वेब से, तो इट्स नॉट गारंटी कि आपका परचेज सेफ रहेगा या तो आपके डेटा सेफ रहेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट इवन कंप्लेन. आप अगर इतना कह दोगे जाके कि मैंने डार्क वेब से कुछ सामान परचेज किया है, नो वन विल हेल्प यू आउट. आपके बैंक वाले भी आपको हेल्प नहीं करेंगे कि कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया या तो आपका कार्ड कोई सेव कर लिया, बिकॉज ये ऑलरेडी इलीगल है और आप उस पर अपने कार्ड को फिर आपका डेटा वहां पे थेफ्ट हो गया. सो देयर इज नो ऑप्शन. सो यही एक OSINT फ्रेमवर्क है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो मिल जाएंगी. ठीक है? तो आई होप OSINT फ्रेमवर्क जो है वो क्लियर है.
एज अ प्रैक्टिकल आप लोग इसको लिंक को सेव कर लो, ताकि एक एक कैटेगरी को ओपन कर करके आप देख सको कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। ठीक है, ओके। लेट्स डिस्कस अबाउट वन मोर थिंग जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड कि कभी कभी वेबसाइट्स गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश कर देते हैं गलती से, एंड देन उसको एडिट करके रिपब्लिश करते हैं? किसी को ऐसा इंफॉर्मेशन कभी दिखा हो कि वेबसाइट पे गलत कुछ पब्लिश हो गया हो, फिर उसको एडिट करके उन लोगों ने चेंज किया मिस इन्फॉर्मेशन के कारण? ऐसा कुछ, एनी वन ऑफ यू नोटिस समथिंग लाइक दिस समटाइम्स? और लोग फिर उसको ढूंढते हैं फिर कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जिन लोगों ने देख लिया उन लोगों ने देख लिया, जिन लोगों ने मिस कर दिया वो लोगों ने मिस कर दिया। एनीवन? So this is kind of a thing which generally happens by mistake. कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए किसी के पास प्रूफ नहीं रहता है कि सपोज कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है मे बी ndtv.com पे, ठीक है, कल पब्लिश हुआ कुछ आर्टिकल ऑन ndtv.com एंड इट वाज सम काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, so people started uh, complaining about the content, and they then after 10 to 20 minutes they changed the content. But those who took screenshots and published somewhere, it's hard to believe कि उन लोगों ने कुछ एडिटिंग किया है कि क्या किया है, बिकॉज अब तो सबूत ही नहीं है कि एनडीटीवी ने उसको पब्लिश किया भी है कि नहीं किया। सो देयर इज वन वे using which we can check the archive version of content. Okay, archive means suppose अगर कुछ वेबसाइट ने चेंजेस कर दिए हैं कल को या परसों, फिर भी हम देख सकते हैं कि इसे 2 दिन पहले क्या कंटेंट था वेबसाइट पे। दैट्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ Wayback Machine. Any one of you heard about Wayback Machine? Okay, so few of you heard about Wayback Machine. So look, okay, so Wayback Machine is a kind of a website software by archive.org. Okay, in this particular Wayback Machine, we can see internet archives of millions of websites. Okay, for example, how many of you know when Facebook was launched? Anyone? किसी को पता है कि Facebook launch कब हुआ था? Yeah, so Facebook was launched in 2004. ठीक है, तो जब 2004 में Facebook लॉन्च हुआ था, किसी को अभी तो हम लोग को ऑब्वियसली नहीं पता है कि Facebook 2004 में कैसा दिखता था, बिकॉज हम लोगों ने खुद फेसबुक यूज करना चालू किया 2010, 11, 12. So we don't know how Facebook looked like at that time. फेसबुक उस टाइम कैसा दिखता था? ओके, बस किसी किसी को आइडिया होगा जिन्होंने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी होगी। एनीवन वॉच्ड द सोशल नेटवर्क मूवी ऑन फेसबुक? There's a movie known as The Social Network. Okay, this very very interesting movie, The Social Network. It's very interesting film. So those who didn't watch this film, they can watch. It's on Facebook, on Mark Zuckerberg, how the idea went from $0 to $1 billion project. So you can watch this movie. It's interesting. Okay, so जिन्होंने ये मूवी देखी होगी उनको पता होगा फेसबुक पहले कैसे दिखता था, अभी फेसबुक कैसे दिखता है। अभी फेसबुक कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद तो और अलग हो जाएगा। लेट्स सी हाउ फेसबुक लुक्स लाइक व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। ओके, सो आपको सबको पता ही होगा कि वंस अ वेबसाइट इज लॉन्च, जब कोई सॉफ्टवेयर वेबसाइट लॉन्च होता है तो उसका पहला वर्जन उतना एडवांस नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें फिर चेंजेस होते हैं। ऑब्वियसली 2004 में उतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि वेबसाइट उतना एडवांस बन सके। सो विद द हेल्प ऑफ PHP, जो कि आज भी फेसबुक में यूज होता है, PHP लैंग्वेज, Mark Zuckerberg built the facebook.com. And let's search
facebook.com, and I want to get information from 2004. 2004 में हमारे पास ये डेटा है, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं जून से, जून 15 2004, जून 15 2004. let's see how Facebook look like. This is how Facebook look like, ठीक है। बट ये फेसबुक नहीं है, क्यों? एनीवन, एनी रीजन बिहाइंड दिस? किसी को पता है? यस, नो? सबको पता है कि फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था, बट दिस इज नॉट फेसबुक. व्हाई? बिकॉज जब फेसबुक लॉन्च हुआ था उसका नाम facebook.com नहीं था, उसका नाम था thefacebook.com, ठीक है। उसका नाम था thefacebook.com, ना कि facebook.com. तो THE facebook.com. So let's hit enter, and we can see from June 15, June 12, one screenshot is there, and this is how Facebook looked like at that time. ये तो कुछ देर बाद का है, बिकॉज जब फेसबुक लॉन्च हुआ था दैट वाज ओनली फॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट उसके बाद आई थिंक ये जून का है, तो आई थिंक जून में इन लोगों ने एक्सपेंड किया था. So at that time they spread across lots of universities and places. This is how Facebook looked like when it was launched. Okay, now slowly and slowly they started improving. Let's see how it looked like in March 12 2005. So it's February 28 2005. Let's see August 28 2005. Okay, it went to July. Okay, July 31st 2005, they spread across few more locations. Let's try to see 2006. So there is no data of 2006 because at that time the domain was changed to facebook.com. But let's see last year December तक में क्या इसका होगा 2005 में. So no. Why? Because they changed the domain name from the Facebook to Facebook. And this is how it looked like. Okay, नहीं, ये तो अभी का है. 2006 में देखते हैं. 2006 में this is how Facebook looked like. थोड़ा improvement हुआ. Okay, 2007 में okay, some kind of error. Okay, this is how it looked like in 2007. So slowly and slowly ये improve होते गया. But इधर हम लोग का main चीज क्या है? Objective की finding information about the particular stuff which we cannot see right now. So जो चीज हम अभी देख नहीं सकते हैं वो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले क्या था क्या नहीं था, अबाउट अस में क्या था, डेवलपर्स में क्या था. अगर मैं डेवलपर्स में आऊँ, आई डोंट नो कुछ इसके लिए लॉन्च हुआ था कि नहीं हुआ था. तो के डेवलपर्स के लिए कुछ कुछ ऑप्शंस थे, प्राइवेसी पॉलिसी सपोर्ट. Okay, so this is how it looks like. Okay, so ये Wayback Machine जो है ये भी बहुत ही important tool है that is used for finding out the archive information. So I hope you got proper understanding on these small stuff.
Okay, after that, subdomains. So what is subdomain? Any one of you? How many of you know about a subdomain? What is a subdomain exactly? वो क्या होता है? No idea? Okay. So पहली बात, once we publish a website, जब हम वेबसाइट को पब्लिश करते हैं, what do we need to do first? क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए? एनीवन? वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? डोमेन, यस, फर्स्ट थिंग डोमेन. सेकंड, यस, सेकंड इज होस्टिंग, करेक्ट? तो डोमेन एंड होस्टिंग इज द रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिशिंग अ वेबसाइट. हम लोग क्या करेंगे तो फिर हम लोग डोमेन परचेज करेंगे, राइट? अब डोमेन परचेज जब करते हैं हम लोग, तो उसके साथ साथ एक होस्टिंग परचेज करते हैं और दोनों को लिंक कर देते हैं. एक डोमेन को होस्टिंग से लिंक कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, करेक्ट? नाउ वंस वी ब्राउज अ डोमेन, लाइक इफ आई ओपन google.com, इट ओपन्स दिस पेज. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेज कहीं ना कहीं वेब सर्वर पे होस्टेड है, करेक्ट? कहीं ना कहीं होस्ट किया हुआ है, कोड किया हुआ है, एक जगह प्लेटफॉर्म है जिसको हम डोमेन नेम के हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हैं. बट वो होस्टिंग जो है, एट होस्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन आईपी एड्रेस. तो मैं तो इसको आईपी एड्रेस से भी ओपन कर सकता था. अब गूगल का आईपी एड्रेस क्या होगा? दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड. सो व्हाई डोमेन नेम देन? सो इट्स क्लियर कि बिकॉज आईपी एड्रेस को कोई मेमोराइज नहीं कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डोमेन वाज इंट्रोड्यूस्ड. एंड डोमेन इज नाउ लिंक्ड टू आईपी एड्रेस विद द हेल्प ऑफ डीएनएस, जो कि हम लोग यहां से देख पा रहे थे. डीएनएस चेकर, ठीक है? अगर मैं यहां डाल लूं google.com, तो हाँ, एक चीज याद रखना है कि बड़े बड़े वेबसाइट्स जो होते हैं उनके पास हजारों आईपी एड्रेस होते हैं. दे ओन थाउजेंड्स ऑफ आईपी एड्रेसेस. जैसे कि अब यूएस में अकेले कितने सारे 6-7 आईपी एड्रेस हो गए. ओके, नीदरलैंड्स में भी इतने सारे आईपी एड्रेस हैं, ऑस्ट्रिया में इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं. बिकॉज उनके पास ट्रैफिक इतना है ना कि वो लोग एक आईपी एड्रेस से हैंडल नहीं कर सकते हैं. दे नीड टू गेट थाउजेंड्स ऑफ आईपी एड्रेस, जो कि हर 10-20 मिनट पे चेंज होते रहता है टू हैंडल द ट्रैफिक. तो we cannot memorize the IP address. That's why domain was introduced. That's why we use domain name to access any website. ये तो क्लियर है. अब यहाँ बात आता है कि जब हम सर्वर पे क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स, होस्ट करते हैं, तो अलग अलग सर्विसेज होस्ट करते हैं, करेक्ट? अलग अलग फीचर्स. अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया है, तो हो सकता है ना कि आप अपने वेबसाइट पे कुछ नया फीचर डालो. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक नया फोल्डर बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं, और वहां पे उस पर्टिकुलर चीज को डालते हैं. जैसे कि google.com/images, ये एक नया फोल्डर हो गया, करेक्ट? जहां पे इमेजेस हैं. CSS, जहां पे CSS फाइल्स हैं. JS, जहां पे जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं. तो ऐसे हजारों डायरेक्टरीज होते हैं वेबसाइट पे जहां पे जो फाइल है वो स्टोर किया जाता है. तो अगर मैं अपने वेबसाइट पे एक नया फीचर डाल रहा हूँ, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गूगल इज हैविंग अ फीचर नोन एज गूगल इमेजेस. तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो गूगल ने क्या किया, एक सबडोमेन बना दिया, images.google.com, जो कि गूगल पे ही होस्टेड है, बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको ये सबडोमेन यूज करना पड़ेगा. या तो आप google.com/images यूज कर सकते हो, या तो आप images.google.com यूज कर सकते हो. तो ये images.google.com का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए लाया गया था ताकि एक सबडोमेन बना सके जो कि याद कर सकें लोग, और एक पर्टिकुलरली एक तरह से एक एक डोमेन नेम हो जाए एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए. If I access images on google.com, it says your connection is not private. So maybe some issues in my case. So like suppose if I open Google images, so okay, इनका सबडोमेन नहीं है. code.google.com. ओके, ये एक हो सकता है. नो, ये भी नहीं है. ओके, developers.google.com, आई थिंक ये हो सकता है. ओके ओके, cloud.google.com. Anyone know about cloud.google.com? हाँ, मेल पता है मेरे को कृष्णा, बट मेल मैं खोलूंगा तो मेरा मेल बॉक्स खुल जाएगा. सॉरी, cloud.google.com. यस,
cloud.google.com is a cloud service by Google like AWS and Azure, right? So अब ये क्या है, गूगल का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे होस्टिंग्स वगैरह सर्वर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ना यू सी कि गूगल ने क्या किया, एक सब डोमेन ले लिया उस सर्विस के लिए, cloud.google.com। अब ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ सब डोमेन का यहाँ पे, उसके लिए क्वेश्चन पहले पूछना चाहूंगा मैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप वेबसाइट के प्राइमरी डोमेन को स्कैन करो और वहीं पे आपको वल्नरेबिलिटीज मिल जाए? इज इट पॉसिबल? You are scanning a primary domain and you will get vulnerabilities from that domain only. It's not confirmed, right? कि आपको डायरेक्टली फर्स्ट पेज से ही vulnerabilities जो है वो मिल जाए अगर आप एक डोमेन को स्कैन करो। पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज आईपी एड्रेस ऑफ cloud.google.com is also different. IP address of mail.google.com is also different. Okay? So उस केस में क्या होता है कि if you scan google.com, you will be getting details about Google only, services hosted on google.com. You won't be getting details about other services like हो सकता है कि वो vulnerabilities जो है वो cloud platform पे हो सकता है कि vulnerabilities जो है वो mail platform पे हो। That's possible, right? That's why people vulnerabilities uh, penetration testers look for each and every subdomains, इसीलिए subdomains का information भी जरूरी होता है। And for that we use subdomain scanner. Okay, subdomain scanner, you can find out few websites where you can scan about subdomains that is available for free. सपोज मैं अगर यहाँ सर्च करूँ जैसे कि नेटफ्लिक्स का देखता हूँ, netflix.com, रन बेसिक स्कैन। ये सब टूल्स एक्चुअली 100% फ्री नहीं होते हैं, बट जब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा वहां पे आई विल एक्सप्लेन अबाउट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स जो कि हमारे इस कोर्स में होंगे। राइट नाउ फॉर अ बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन आई एम शोइंग यू दीज फ्री टूल्स ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे ये स्कैन करना शुरू हो गया है एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स।
Okay, so it's taking a little bit of more time. ज़्यादा टाइम ले रहा है ये. Okay, no issues. So इसको हम होने देते हैं and let's discuss something else right now. So okay, so this is what footprinting and reconnaissance means. Okay, ये हम लोग स्कैनिंग नहीं कर रहे हैं, ये बस फुटप्रिंटिंग और reconnaissance था, ठीक है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर किया जाता है. जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में हम लोग स्कैनिंग देखेंगे, ठीक है. स्कैनिंग जो है वो काफी एडवांस है, उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं. सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, जब हमारे पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कि हमको अपने प्रैक्टिकल्स के लिए विंडोज के अलावा ओके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड है. सो पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि आप 100% प्रैक्टिकल्स जो है वो विंडोज पे नहीं कर पाओगे, बिकॉज विंडोज क्या है ना, विंडोज सॉफ्टवेयर पे नहीं कर पाओगे, बिकॉज सॉफ्टवेयर्स बस एक ग्राफिकल इंटरफेस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक इथिकल हैकर बन गए हो या तो आप एक एक्सपर्ट बन गए हो. सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज कर लेने से ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस रियली वर्क्स, और उसके लिए जरूरत होता है लिनक्स प्लेटफॉर्म का. सो आई होप आप में से बहुत से लोगों को लिनक्स के बारे में मालूम ही होगा. लिनक्स जो है एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट और डेबियंस निकले हैं, जैसे कि हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम कैली क्यों नहीं यूज कर सकते. तो ऐसा कारण इसलिए है ना कि कैली के नए नए अपडेट्स में ऐसा होते गया है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स कम होते गए हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है. ऑब्वियसली आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, बट उसके लिए जो रेपोजिटरीज है जहां से डाउनलोड करते हैं उतना सपोर्ट नहीं है. तो इसीलिए इसी काउंसिल तक ने अपने कोर्सेज में कैली को हटा के पैरेट ला दिया. तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बड़ी कम्युनिटीज हैं इनके, यानी कि आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा. कुछ सर्च करोगे आप ऑनलाइन किसी डाउट को लेके तो रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स बहुत ही इजीली मिल जाएगा, ठीक है. और अपडेट्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी आते हैं पैरेट्स में, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में. और सॉफ्टवेयर जो हैं, मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं पैरेट, ठीक है. पैरेट का एक फायदा ये है कि जो होम यूजर्स हैं जो कि विंडोज यूज करते हैं वो भी पैरेट यूज कर सकते हैं, और जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या फिर इथिकल हैकर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली यूज कर ही सकते हैं. तो हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है. तो जिनके पास अभी विंडोज इंस्टॉल्ड है उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके. आप अपने विंडोज को एज इट इज रहने दो, हम उसी सिस्टम पे ये पैरेट चलाएंगे, ठीक है. तो आने वाले क्लासेस में जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, व्हेन विल बी डूइंग प्रैक्टिकल्स इन आवर अपकमिंग क्लासेस, we will be using majority of we will be doing majority of the practicals in parrot only, ठीक है. कभी कभी जरूरत पड़ने पे विंडोज टूल्स का यूज करने वाले हैं कभी कभी, ठीक है. ठीक है, तो ये हो गया पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम. ये है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का वेबसाइट, ठीक है. तो पहला चीज आपको क्या करना है कि आपको पैरेट जो है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है. उसका लिंक मैं अभी पेस्ट करूंगा लाइव चैट में, और मैं अभी क्वेश्चन के लिए अलाउ करूंगा. तो पहले पूरा बात सुन लो अच्छे से. So you need to download Parrot operating system. This is the link, and I have shared in the live chat. So अब इधर आपको दिखेगी Parrots के अलग अलग वर्जन, होम एडिशन, सिक्योरिटी एडिशन एंड IoT एंड क्लाउड, ओके. सो हमको कौन सा करना है, हमको करना है सिक्योरिटी एडिशन. We need to download the security edition of Parrot. Why? Because whatever softwares and whatever tools we need, everything is available in the security edition. So आपको डाउनलोड करना है security edition, ये बीच वाला, this one, ठीक है. तो हम नेक्स्ट क्लास में जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीक, उसमें I will be teaching you how to install the Parrot operating system in your Windows with the help of VMware. Now what is VMware? VMware का फुल फॉर्म है वर्चुअल मशीन वेयर. ये एक सॉफ्टवेयर है with the help of which we will be able to run
ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्चुअली। जैसे हम एक म्यूजिक प्लेयर से चला सकते हैं, एक वीडियो को वीडियो प्लेयर से रन कर सकते हैं, वैसे ही हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इस ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअल मशीन प्लेयर से रन कर सकते हैं बिना उसको इंस्टॉल किए। आपको अपना कोई डेटा लूज करने का जरूरत नहीं है, आपको अपना विंडोज हटाने का भी जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली रन दी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ VMware। सो अब VMware कैसे इंस्टॉल करना है, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इजी। जस्ट गो टू VMware, मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज अ लिंक फॉर वर्चुअल मशीन प्लेयर, फ्रॉम यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री। ठीक है, हो सकता है कि आपको अकाउंट बनाना पड़े यहाँ से, तो जैसे यू विल ओपन यू कैन जस्ट गो टू डाउनलोड्स। अगर अकाउंट बनाने को कहे तो यू कैन क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ लाइव चैट में। यह है VMware का। इसके अलावा VMware का एक अल्टरनेटिव भी है, दैट इज नोन एज वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स जो है ये एक सॉफ्टवेयर है फ्रॉम ओरेकल। सो जिनके कंप्यूटर सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन कम है, यानी कि रैम कम है, CPU का पावर कम है, दे कैन गो विद वर्चुअल बॉक्स। ये दोनों चीजों को आप यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, अब ये मत पूछना बेस्ट कौन है, दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, सो पहला चीज है डाउनलोड पैरेट, सेकंड डाउनलोड वर्चुअल मशीन प्लेयर, एनी ऑफ दीज, या तो वर्चुअल बॉक्स या तो VMware, कोई भी डाउनलोड कर लो। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन I will take a class on that how to install this VMware virtual machine player and how to set up the parent operating system in your Windows. That will be covering in the next session. ठीक है, तो Windows Kali Windows Linux based parrot, इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हम लोग यूज करने वाले हैं थ्रू आउट आवर होल कोर्स, और आने वाले प्रैक्टिकल्स भी हम इसी में करेंगे। तो इस पे कोई डाउट है किसी को, कैसे ये करना है? लिंक वगैरह शेयर हो चुका है। I hope it is clear, crystal clear everything. Okay. ये चीज पहले ही बता देता हूं मैं कि डोंट ट्राई टू इंस्टॉल योरसेल्फ इफ यू डोंट नो। अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो ट्राई प्लीज मत कीजिएगा, बिकॉज एक बार अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं हुआ तो दोबारा करने के लिए बहुत ही इशू होता है। ओके, मैंने अभी जस्ट बताया कि वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कैसे होता है। अब अभी से पूछना शुरू कर दिया आप लोगों ने, अभी बता दो। डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड पैरेट, कोई डिफरेंस नहीं है। पैरेट जो है लिनक्स पे बना हुआ है। सबडोमेन स्कैनर तो ये क्या होता है? थिंक ये रन नहीं हुआ। ओके, आई थिंक ये रन नहीं हुआ शायद, कोई बात नहीं। ये जो सबडोमेन स्कैनर है ना, दैट यू कैन आल्सो गेट दिस सॉफ्टवेयर इन द पैरेट। ओके, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में सबडोमेन स्कैनर है जो कि हम यूज करेंगे जब हमारा पैरेट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद वो प्रैक्टिकल्स हम करेंगे एक्चुअल में, जो पावरफुल टूल्स हैं उनके हेल्प से। अभी तो उतने पावरफुल टूल्स नहीं है, बट वंस वी इंस्टॉल द पैरेट हमारे पास प्रैक्टिकल्स करने के बहुत से ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगे। इज इट ओके टू यूज these tools, OSINTs, docs and all? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग ये समझ दो कि कुछ भी इलीगल नहीं है जब तक आप कुछ गलत ना करो। ठीक है, कुछ भी इलीगल नहीं है जब तक आप कुछ गलत ना करो। अगर आपको किसी का पासवर्ड मिल जाए, आप भले उसके अकाउंट में लॉग इन कर लो, बट आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपने कुछ गलत नहीं किया। ओके,
आप भले किसी का नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल यूज करके लॉग इन कर लो, बट आपने कुछ वहां पे कुछ छेड़खानी नहीं की तो आपने कुछ गलत नहीं किया। जब तक आप कुछ गलत नहीं करोगे तब तक वो इलीगल नहीं होगा। ओके, सो ये एक चीज अपने माइंड में रखना। ठीक है, कभी कभार होता है ऐसा कि हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ ओनली। once I started doing these, like once I started learning ethical hacking and cyber security, I started doing phishing. How many of you know about phishing here? So what is phishing? वो मछली पकड़ने वाला फिशिंग नहीं, फिशिंग PHISHING। ओके, ये फिशिंग क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग वेयर वी क्लोन अ वेबसाइट, ओके, और एक एग्जैक्ट सिमिलर क्लोन बना के उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिंक को हम लोग टारगेट्स को भेजते हैं, जिनको लगता है कि ये एक ओरिजिनल वेबसाइट है, वहां पे अपने क्रेडेंशियल्स को वो लोग डाल देते हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू रिसीव्ड emails saying you won a lottery of $1,000, $1 lakh, $1 million, like this, from Coca-Cola company, Toyota company? So ये जो spam emails होते हैं, why you get these kind of mails? Because it's a kind of, या SMS also, SMS भी आजकल आते हैं। तो ये क्यों, क्या होते हैं? ये बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रोसेस है, जिसमें कि आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भी आएंगे, यू विल गेट व्हाट्सएप मैसेजेस, यू विल गेट ईमेल्स, यू विल गेट एसएमएसेस, बिकॉज दे हैव योर नंबर एंड ईमेल। उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास आपका। बट अगर आप एक बार उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप इंफॉर्मेशन तो दो गई अपना। भले आपको ये लगे कि मैं अपना अकाउंट का डिटेल्स तो नहीं शेयर कर रहा हूँ ना, बट अपना नाम शेयर करोगे आप, फोन नंबर शेयर करोगे आप। जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो वहां से एक मेन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, सो बहुत से लोग जो हैं वो कर देते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा ही मेल आता है कि यू नीड टू वेरीफाई योर फेसबुक अकाउंट इन ऑर्डर टू गेट योर गिफ्ट मनी, वाउचर मनी। अब लोग क्लिक कर देते हैं लिंक पे। अब क्योंकि मेल में जो है वो लिंक विजिबल भी नहीं होता है, सिंपली क्लिक हेयर मेंशन किया हुआ रहता है, या तो वेरीफाई मेंशन किया हुआ रहता है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आजकल के मोबाइल मोबाइल फोन में ब्राउजर्स भी ऐसे हैं कि आपको लिंक ही नहीं दिखेगा लिंक क्या है। और बहुत से लोग लिंक पे फोकस भी नहीं करते हैं कि एक्चुअल में डोमेन नेम है क्या। जबकि एक वही तरीका है वेरीफाई करने का कि ये फेक पेज है कि ओरिजिनल पेज है, उसके डोमेन नेम के थ्रू। अब आपको कोई लिंक भेजे facebook-lottery.com, आपको क्या लगेगा कि ओरिजिनल है कि फेक वेबसाइट है? ऑब्वियसली वो फेक होगा, क्योंकि facebook-lottery.com ऐसा कोई डोमेन ही नहीं है। बट पहला तो वर्ड फेसबुक आ गया ना, तो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो विश्वास कर लेंगे। और प्लस पेज भी जो है वो फेसबुक की तरह दिखता है, तो लोग क्या करेंगे कि ठीक है, डाल देंगे क्रेडेंशियल्स कि चलो वेरीफाई कर लेते हैं, गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। और होता क्या है कि दे एंड अप लूजिंग देयर क्रेडेंशियल्स, और फिर लोग कहते हैं कि हैक हो गए। बट एक्चुअली में क्या ये हैक है? आप डेली बेसिस पे देखते होगे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरा अकाउंट हैक हो गया। हैकिंग एक अलग चीज है। ठीक है, ये जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण लोग जो फंस जाते हैं, ये एक अलग चीज है। ठीक है, या टेक्निकली इट्स नॉट हैकिंग, बट जो लोग आजकल जो इश्यूज फेस करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड स्कैम हो, चाहे वो पास फेसबुक का हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होना हो, वो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण होता है, जब लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गया। सो ये फिशिंग है। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, फिशिंग के हेल्प से मुझे बहुत से क्रेडेंशियल्स ऐसे मिल गए थे। ठीक है, तो मैंने जब फिशिंग स्टार्ट किया तो आई गॉट लॉट्स ऑफ क्रेडेंशियल्स। सो क्रेडेंशियल्स का लिस्ट मेरे पास अभी भी है, बट मैंने कुछ गलत नहीं किया। ना तो मैंने लॉगिन करके किसी का मैसेजेस देखे, मैंने लॉगिन किया पासवर्ड चेक करने के लिए कि वो सही में मेरे को सक्सेसफुल, मैं सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। बट मैंने ना तो किसी के मैसेजेस देखे, ना ही मैंने कुछ ऐसा गलत किया कि कुछ ऐसा गलत कर दूं कि नजर में आ जाऊं कि मैंने किसी ने मेरा अकाउंट यूज किया है, किसी ने मेरे मैसेज डिलीट किए हैं, रीड किए हैं। ऐसा अगर आप करोगे, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड देन यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। ठीक है, बट अगर आपने वेरीफाई किया उसके बाद बस आपने छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है आपको, देन इट्स ओके। ठीक है, आपको बस एक चीज मिल गया कि ठीक है, ये एक ऐसा वनरेबिलिटी है, एक ऐसा
चीज है जहाँ पे लोगों को नॉलेज होना चाहिए उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने ये किसी साइबर कैफे में परफॉर्म किया तो आप साइबर कैफे वाले को इन्फॉर्म करो कि ऐसा ऐसा मैंने टेस्ट किया, आपके ये इश्यूज हैं, काइंडली सॉल्व दिस। ओके, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। सो नथिंग इज इलीगल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर डूइंग इट। Okay, so in the next session I will be teaching you how to install the Parrot with the help of VirtualBox or VMware on Windows computer. Okay, so that's it for today's session everyone. बहुत से लोग पूछ रहे थे yesterday's video recording, so yesterday का मैंने बता चुका है कि वो वीडियो जो है वो सही नहीं हुआ है, तो that won't be uploaded. Today's session will be uploaded as a kind of yesterday's sessions detail. Okay, so tomorrow there won't be any session. संडे को कोई सेशन नहीं होता है, संडे को कम से कम आराम कर लो, मेरे को भी करने दो। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का लिंक मैंने अभी शेयर किया लाइव चैट में, मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, पैरेट का, VMware का और वर्चुअल बॉक्स का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन एवरीवन। नो, एक्चुअली हम लोग का जो सेशन होगा वो 1.5 आवर्स का होगा, ठीक है, 1.5 आवर्स का। अभी हम लोग का इंफॉर्मेशन गैदरिंग और ये छोटे छोटे स्टेप्स चल रहे हैं, so that's why I'm taking 1 hour of session. Once we'll be having everything up and 100% installed and everything, we'll be having a 1.5 hour of session every day. Okay, so thank you for joining today's session everyone. You can now leave the class and have a good day ahead. Thank you everyone, bye bye.